So, Avi, Sir, how are you today? sir, I'm fine today, sir. Fine. How's the weather? Sir, the weather is rainy here, and there was a celebration in the campus back yesterday, so Okay. all cheered up. Okay, so you might have observed hillocks around here, the series Aravalli series. Sir, Are you aware that the series mountain range is Aravalli? yes, sir, I'm aware of Aravalli, yes, ओके तो अभी रिसेंटली जो है आरावली रिलेटेड एक इशू हुआ था sir. राइट Yes, sir. there were certain concerns that were raised regarding the Aravalli mountain and various agitations and various demonstrations have been held and because of that Supreme Court intervened and they have given certain verdict. Can you tell me what was the entire story? Sir, as far as I can remember, there was a order passed by Supreme Court which stated that which stated a limit of 100 meters for the the Aravalli considerations, and then it led to an uproar in the public with the fact that anything which was not within the 100-meter range would now be deemed fit for mining, and there was a huge concern about massive gypsum and limestone mining in the foot of Aravallis, which led to public demonstrations on the streets, sir. But now government has already clarified that we are making steps to make sure that Aravalli remains a protected zone at all times. And according to a clarification, around 95% of Aravallis would be under the protected zone, sir. ओके हिल्स और माउंटेन्स में वैसे डिफरेंस होता क्या है? Sir, I'm not able to recall at this moment of time, sir. ओके ऑल राइट. अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताइए कि अगर सपोज करिए आरावली रिलेटेड कंसर्न्स में आपने बोला कि माइनिंग रिलेटेड कंसर्न्स हैं या सम अदर पीपल हु आर environmental related concerns are there. Apart from that, if we are going to remove the entire Aravalli range, then what impact will it cause? Sir, पहले तो it also acts as a barrier for the rain which happens due to the monsoon weathers, right? अगर उसको हटा देंगे तो sir, a lot of parts which are not really prepared for rains might face rainfall due to the Arabian Sea branch. Apart from that, it also acts as a massive biodiversity center. It will also impact not just the local microclimate, but the entire local biodiversity of Rajasthan itself. I think biodiversity, climate change, and the rainfall patterns would be massively disrupted, sir. Okay, apart from that? Apart from that, the local livelihoods which depend on, let's say, minor forest produce in and around. What about deserts? So deserts would also face, the desertification would shift more eastwards towards Delhi. Right. अच्छा आपको ये पता है कि दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजन बिहार में पैदा हुए हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म. सर, बुद्धिज्म के बारे में हमने देखा कि बुद्धिज्म ज़्यादातर जो है इंडिया से बाहर चला गया. सर, लेकिन जैनिज्म में हमने देखा कि जैनिज्म इंडिया में ही रहा लेकिन बिहार से शिफ्ट होकर राजस्थान की तरफ आ गया. सर, आप मेरी बात से सहमत हैं? सर, जैसे जो इंस्टेंसेस है जैसे दिलवारा जैन टेम्पल और जो दिगंबर टेम्पल्स हैं वो मोस्टली नॉर्थ वेस्ट की तरफ कंसंट्रेटेड हैं, तो मैं पार्शली सहमत हूँ सर. अच्छा अब मुझे ये एक चीज़ ये बताइए कि जो बिहार से इसका मतलब एक तरीके से जो माइग्रेशन था जैन रिलीजन का या फिर जैन रिलीजियस जो फॉलोवर थे उसका क्या रीज़न था? बिहार से वो क्यों शिफ्ट हुआ? सर, जैन्स का शिफ्ट फ्रॉम बिहार, सर अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ इसके बारे में. ऑलराइट. आपकी सर्विस प्रेफरेंसेस क्या है? सर मेरी सर्विस प्रेफरेंस है BAS, फिर BPS, फिर BES, फिर BRS और DC होमगार्ड. ऑलराइट. तो आपने सबसे ऊपर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर चुना है. ठीक है. आपकी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है लेकिन आपने ऑप्शनल जो चूज़ किया है वो एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया है. सर, इसका कोई खास कारण? सर पहले तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था क्योंकि मैंने वैसे ही कुछ इलेक्टिव्स लिए थे जो एंथ्रोपोलॉजी सेंट्रिक थे. हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम को भी एक्सप्लोर कर पाएँ, और इसके साथ साथ बिहार में क्योंकि ऑप्शनल सिर्फ 100 मार्क्स का रह गया है जो कि ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ सिलेबस आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी वुड बी अ वेरी प्रैग्मेटिक चॉइस. ऑलराइट. ठीक है. बिहार में ना ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे हैं डे बाय डे सर, है ना, और डे बाय डे तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ फ्रिक्वेंटली वो कोलैप्स होते हैं. सर, ठीक है. आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, ठीक है, आप कैसे इंश्योर करोगे कि जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं वो कोलैप्स ना करें? सर इसे हमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स दोनों के नज़र से देखना चाहिए. पहले स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के बारे में बताइए. श्योर सर. सर अभी जो गया जैसे जो गंगा ब्रिज थी आई थिंक सीतामढ़ी और उसके बगल में जो एरिया वहाँ पे कोलैप्स किया था, 3 करोड़ का निर्माणाधीन पुल था सर.
तो जब वो लास्ट में बन जाता है उसके बाद स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट करने से अच्छा है कि जैसे ग्रेडेड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए विथ क्लियर टाइमलाइंस। जैसे कि अगर 1 जनवरी से हम कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि पीरियोडिक वे में विथ कितना % वर्क कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जो सैंक्शन रिलीज़ होता है सर DPR के हिसाब से जो अमाउंट रिलीज़ होता है उसी समय पे हर 10% काम के अप्रूवल के बाद या वर्क कंप्लीशन पे हम रैंडमाइज इंस्पेक्शन करते रहें। और वहाँ पे सर हम इन्वॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि जो IIT पटना है वो सॉइल टेस्टिंग करती है, वैसी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्टिंग भी हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रैंडमाइज्ड वे में हैश करके करवा सकते हैं सर। ऑलराइट, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप जो है मान लीजिए एक SDM है एक डिस्ट्रिक्ट के सर, ठीक है, और आप इलीगल माइग्रेशन पे नज़र रख रहे हैं। मान लीजिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो एडजॉइनिंग है नेपाल से सर, ठीक है, आप इलीगल माइग्रेशन पे नज़र रख रहे हैं और इलीगल माइग्रेशन में समहाउ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं सर, है ना, वो ब्राइब लेके या फिर समहाउ दे आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द माइग्रेंट्स एंड दे आर अलाउइंग दोज माइग्रेंट्स टू क्रॉस द बॉर्डर। सर, पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि ये सारी चीज़ें रुक जाएं। सर, दूसरा, आप इसमें कौन कौन से लोगों को इन्वॉल्व करेंगे? सर, क्या आपके ही ज्यूरिसडिक्शन में सारी चीज़ें होंगी या फिर आप और भी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे? सर पहले कि मेरा अप्रोच क्या होगा, तो उसमें पहला सर्वप्रथम होगी सर कि आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से लोग की मेली भगत है इसमें, उन्हें तत्कालीन रूप से निलंबित करना या उनके खिलाफ। आपके हाथ में है निलंबन? सर मेरे हाथ में अनुशंसा करने का पावर रहता है सर। तो वो किसको अनुशंसा करेंगे? सर डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल, और जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसे अनुशंसा करेंगे सर। पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब? सर आप किसके अंडर में काम करेंगे? सर अगर मैं SDM हूँ तो मैं सर हायरार्की क्या है एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पे बिहार में? सर पहले SDC बनाते हैं, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी, और वैसे करके सर ऊपर में। तो आपके इमीडिएट सीनियर को आप इन्फॉर्म करेंगे? यस सर। यानी कि DM को? सर DM को और अनुशंसा की जानकारी दे सकते हैं कि इनकी निलंबन की अनुशंसा कर सकते हैं। उसके अलावा सर एक टास्क फोर्स बना सकते हैं जो कि रैंडमाइज वे में छापा मारेगा अलग अलग जगह पे और हॉटस्पॉट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कहाँ पे वो जनरली, क्योंकि सर आइसोलेटेड हाउसिंग देखा गया जैसे वेस्ट बंगाल के केसेस में कि वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे सीधे छापा मारना। और दूसरा सर कि हम इंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और SSB जो कि वहाँ पे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसके साथ समन्वय बना सकते हैं, ताकि उनको भी इन्वॉल्व करना है SSB को, ताकि वी मेक श्योर कि वहाँ से पहले लोग आ ही नहीं पाएँ, जो हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में घुस ही नहीं पाएंगे, तो वहीं पे अगर बॉर्डर पे रुक जाए। नेपाल पे कौन सी फोर्स गार्ड करती है? सर SSB। सशस्त्र सीमा। SSB किसके अंडर में आती है? सर मिनिस्ट्री ऑफ होम। मिनिस्ट्री ऑफ होम। तो SSB के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करेंगे या होम मिनिस्ट्री के साथ? सर होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखा जाएगा जिसके बाद। आपने तो बोला कि SSB के साथ करेंगे। सर मतलब मेरा अर्थ हुई। ओके, ऑलराइट। और उसके बाद फिर? सर इसके बाद पहले बॉर्डर पे ही रोकने का कोशिश होगा, और अगर वो ना हो पाए और जो हमारे अंदर आ चुके हैं तो हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन करके हम चिन्हित करेंगे कि कौन कौन से यहाँ के नहीं हैं, और अगर उनका आधार कार्ड या कुछ भी स्थानिक प्रमाण पत्र बनने की कोशिश हुई है, क्योंकि पहला स्टेप वही होता है, तो वहाँ पे रिगरस चेक लगाएंगे, लेट्स से द तहसीलदार ऑफिस या फिर जो वीडियो का ऑफिस होता है वहाँ पे। अगर ये सारी चीज़ें हो रही होती तो बिहार में SIR कराने की क्या ज़रूरत पड़ती? सर यहाँ पे कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस हैं सर, बट आई थिंक SIR इज़ अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड इन्हांसिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी सर। थैंक यू सर। एक क्वांट रिसर्चर के रूप में आपने डेटा के साथ काम किया है, तो बिहार के कास्ट बेस्ड सर्वे जो डेटा का उपयोग है उस एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे उसका उपयोग करेंगे? सर हम इसका यूज़ कर सकते हैं टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग में। सर जैसे जो डिप्रीवेशन होता है वो एक अम्ब्रेला टर्म अब रह नहीं गया सर, डिप्रीवेशन के भी लेवल्स होते हैं, उनका कितना डेप्थ है वो हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है वो क्लासीफाई कर सकता है कि कौन कितना % डिप्राइव्ड है। तो सर पैरामीटराइजेशन के साथ हम टारगेट कर सकते हैं कि एजुकेशन में इस हॉटस्पॉट में सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करना है, या यहाँ पे टर्शरी एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम है, या हेल्थ पैरामीटर्स यहाँ पे सर सब डिविजनल हॉस्पिटल्स नहीं है, या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की किस डिस्ट्रिक्ट में नीड है। इससे सर टारगेटेड और कंटेक्चुअल पॉलिसी मेकिंग हो पाएगी सर। सर आपकी प्रोफाइल में काफ़ी इलीट है, तो आप बिहार के जो ग्रामीण इलाके हैं उनसे आप मतलब कैसे कनेक्ट
करेंगे? सर जैसे आपके प्रोफाइल जो है वो काफ़ी मतलब एलिट टाइप का है सर ज़्यादा, तो आप जैसे ग्रामीण बिहार के ग्रामीण इलाके हैं तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? सर सर मेरा प्रोफाइल एलीट भले ही दिख रहा हो, बट मैं बहुत ग्रामीण जगह से ही आता हूँ। मैंने डिप्रिवेशन देखा हुआ है सर। मैं कोल बियरिंग एरियाज़ के बगल में रहा हूँ, तो मुझे पता है वहाँ की मूलभूत संरचनाएं कैसे मिसिंग है और क्या क्या इंटरवेंशंस नीडेड है। और उसके साथ ही सर, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो 7 निश्चय प्रोग्राम है, उससे सर बहुत हद तक ग्रामीण और रूरल दोनों इंटीग्रेट हो रहे हैं और हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और मूलभूत संरचनाएं उपलब्ध कराने की तरफ बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है सर। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत दिक्कत होगी वहाँ एडजस्ट होने में सर। चलिए, बिहार जैसे राज्य में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आप अपनी फिनटेक का जो समझ है मतलब उसका उपयोग कैसे करेंगे? सर सर जैसे जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, उसी के तर्ज पे हम स्टेट डिजिटल फिनेंशियल इंक्लूजन यूनिट्स लगा सकते हैं अलग अलग पंचायत में, अलग अलग विलेजेस में। उनको कनेक्ट कर सकते हैं पेमेंट बैंक्स के साथ। पेमेंट बैंक्स को हम इंसेंटिव दे सकते हैं कि उनके जो रिसोर्स पर्सन या फिर जो लोकल ऑफिस होगा वो कोऑपरेशन मोड में चल सकता है पंचायत ऑफिस या फिर तहसील ऑफिस में। और उसके साथ सर डिजिटल पेमेंट्स बैंक और जो फिनेंशियल इंक्लूजन यूनिट्स हैं वो काफ़ी मददगार साबित होंगी सर। जो ग्रामीण पर्यटन है बिहार का, तो उसमें आपका जो पजलिंग मतलब वो है हॉबी, उसमें कोई अगर 5 टॉपिक रखना होगा तो आप क्या क्या रखेंगे? सर जैसे छोटे रूप में अगर मैं बोलूँ तो 5 टॉपिक्स हैं। सो पहले सर साइंस के बारे में, बिहार के इतिहास के बारे में, बिहार के कला के बारे में, बिहार के प्रबुद्ध पर्सनालिटीज़ के बारे में, और जो बिहार का प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम अलग अलग क्विजेस करा सकते हैं प्राइमरी लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे, जिससे कि बच्चे और इवन जो बाकी लोग हैं वो जागृत हो पाए। आपके नाम का मतलब क्या है? अभी संकृत्य सर है ना, आपके नाम का मतलब क्या है? सर अभी का मतलब है सूर्य और सांकृत्य का मतलब होता है संस्कृति के रक्षक। आपकी मदर डीआईजी रजिस्ट्रेशन झारखंड गवर्नमेंट में पोस्टेड हैं अभी। सर क्या है उनका वर्क प्रोफाइल, क्या है वहाँ पर? सर वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, जो सब रजिस्ट्रार पद से शुरू होता है, लैंड रजिस्ट्रेशन, लैंड रिकॉर्ड्स होल्डिंग, और वहाँ पे सर मैरिज रजिस्ट्रेशन और वो वाला काम भी उन्हें सौंपा हुआ है। तो वो सर वहाँ से पूरे जो राज्य की जो लगभग 24 डिस्ट्रिक्ट है हम लोग के यहाँ, उसकी पूरी जो समीक्षा है सर वो मम्मी करती हैं सर। बिहार से रिलेटेड मेरा 2 क्वेश्चन है आपसे। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम इन बिहार टुडे? सर पहला प्रॉब्लम बिहार में है कि वी स्टिल हैव 60% ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और ये प्राइमरी प्रोडक्शन में ही सीमित है, और जबकि बाकी स्टेट्स प्रोसेसिंग की तरफ जाके जीवीए में काफ़ी ऐड कर रहे हैं। सर दूसरा जो मेजर है कि हमने स्टेम एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, जिसके कारण आज के ज़माने में जो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर्स हैं जैसे आईटी या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वो सर अभी बिहार में बहुत सीमित है। तो आई थिंक स्किल डेवलपमेंट और आईटी पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, जिसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है सर। और व्हाट स्टेप्स हैव द बिहार गवर्नमेंट टेकन फॉर द एजुकेशन, हेल्थ एंड द एम्प्लॉयमेंट? Sir, under the 7 Nishchay scheme, there have been multiple steps. Firstly, for the employment, there has been Mukhyamantri Mahila Rozgar Samman Yojana. There has been Mukhyamantri Mahila Swavlamban Yojana. There's been impetus on SHG-led growth. For example, the Jivika model of SHGs, which has generated humongous employment. For education, we have Mukhyamantri Mahila Cycle Yojana, Mukhyamantri Chhatravati Yojana, which is for meritorious class 10th and 12th students. Apart from that, Bihar government is actively sending a lot of students even to study and take part in trainings abroad and then return back and serve. In the health sphere, we are building state-of-art hospitals. Recently, the Chief Minister announced that there would be model hospitals and model schools in each block of Bihar. And we are building a multi-super specialty hospital with around 5,400 beds in PMCH Patna. And there has been impetus on engineering and medical colleges in each district of Bihar, which is a key pillar of the 7 Nishchay Sulabh Swasthya Surakshit Bhavishya pillar sir. अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं व्हाई इज माइग्रेशन हाई फ्रॉम बिहार स्टिल टुडे? सर मैं इसे हिस्टोरिकली और मीडियम वाले फ्रेमवर्क में तोड़ना चाहूँ अगर, तो पहला हिस्टोरिकल माइग्रेशन हुआ सर जब NHS की स्थापना हुई, उसके बाद डॉक्टर्स का माइग्रेशन हुआ, फिर जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो पंजाब हरियाणा में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, तो हमारे यहाँ से जो स्मॉल साइज टीलर्स थे
वो वहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर्स के रूप में गए। सर 90s में हमारा फोकस अभी रहा। आप बता सकते हैं इसमें कुछ बिहार गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है इसको माइग्रेशन को रोकने के लिए अभी कुछ? सर अब हमारा इम्पिटस स्टेम एजुकेशन की तरफ ज़्यादा है, जिससे कि हम वापस ला पाएँ। सर हम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि स्किल्ड लेबर हमारे यहाँ रहे। जैसे कि गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ऑलमोस्ट 5 लाख लोग को नौकरियाँ देगा। वैसे ही सर हम SEZ की तरफ जा रहे हैं, जो नवानगर में एक SEZ बना रहे हैं, उससे लगभग 10-15 लाख लोग को रोज़गार मिलने का प्रावधान है सर। और हम एक्टिवली कनेक्ट कर रहे हैं जो NRI डायस्पोरा है उसके साथ, ताकि वो बाहर वापस आके बिहार में संयंत्र लगाएं। और बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी या बिहार स्टार्टअप पॉलिसी सर, इनसे हम बढ़ावा दे रहे हैं स्वरोजगार को, जिससे कि विलेज बेस्ड डेवलपमेंट और अर्बन बेस्ड डेवलपमेंट का सामंजस्य हो पाए सर। अच्छा मुझे ये बताइए, एक अधिकारी को लोकप्रिय होना चाहिए या ईमानदार होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ मतलब पर्टिकुलर। लोकप्रिय नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? सर लोकप्रिय होते हुए अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, बट अगर ईमानदार होते हुए अलोकप्रिय हैं तो लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं सर। अच्छा ये मुझे बताइए कि व्हाट विल यू डू डिफरेंटली एज एन ऑफिसर? सर मेरे हिसाब से सर आई वुड बी मोर डेटा बैक्ड अलॉन्ग विद अ कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। डेटा के साथ उनको जो नीड्स चाहिए, उनकी जो परेशानियां हैं, उस पर फोकस करते हुए उनके लिए पॉलिसी मेकिंग करने का काम, प्लस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन टू मेक श्योर वी हैव अकाउंटेबिलिटी इन एवरी स्टेप। डेटा का वो फ़ायदा रहता है कि सर हर 10% पे या हर फेज़ वाइज में हम इवेलुएट कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है सर। एक बताइए, IIT खड़गपुर जैसे संस्थान से निकलने के बाद भी आप गोल्डमैन सैक्स की हाई पेइंग जॉब को छोड़ करके BPSC में आने का असली आपका मोटिव क्या रहा? सर गोल्डमैन सैक्स में मेरी सैलरी अच्छी थी, लेकिन मेरा सेटिस्फैक्शन सीलिंग वहाँ रीच हो चुका था सर। और मतलब खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए और साथ ही एक बेटर सोशल क्वेश्चन के लिए ज़रूरी था कि मैं एक ऐसा काम के प्रति जाऊँ जिसमें सोशल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो। और क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पे मैंने मूलभूत संरचनाओं के लिए कमी देखी हुई है, तो मुझे हमेशा समाज के लिए कुछ करने का बहुत मन था सर। ठीक मैम। अभी आपने बताया कि जैसे कि जो फूड प्रोसेसिंग का है, जैसे कि बिहार है वो एक कृषि प्रधान राज्य है, उसके बावजूद जैसे प्रोसेसिंग होती है फूड प्रोसेसिंग वगैरह वो पंजाब और हरियाणा साइड ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ से ना होके भी मतलब पंजाब साइड ज़्यादा हो रही है? कौन सी कमियाँ हैं बिहार में? मैम इसमें कमी है, पहले जो हिस्टोरिकल कमी ये थी कि हमारे पास लैंड होल्डिंग साइज पर पर्सन बहुत कम था बिहार में, जो कि पंजाब हरियाणा में ज़्यादा था। इसके साथ ही जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ का लेगेसी था, जैसे पंजाब नेशनल बैंक उसमें उस समय से वहाँ पे चल रहा है, तो बैंकिंग प्लस क्रेडिट का पेनिट्रेशन वहाँ ज़्यादा होने के साथ साथ वहाँ पे स्किल्ड लेबर थे जो कि बिहार झारखंड में कम है। इसके कारण वहाँ पे ज़्यादा पेनिट्रेशन रहा। प्लस जो स्टेट सपोर्ट टू द पॉलिसी था, हम काफ़ी लेट आए टूवर्ड्स इकोनॉमिक जस्टिस। वी वेर मोस्टली फोकस्ड ऑन सोशल जस्टिस फॉर द पास्ट 2 decades फ्रॉम 1990s to 2010s। तो हमारा फोकस सोशल जस्टिस की तरफ ज़्यादा था। तो हम जो लिबरलाइजेशन की बस थी सर मैम, उसे हमने थोड़ा सा मिस कर दिया, जो कि पंजाब हरियाणा की तरफ शिफ्ट हो गया मैम। तो अभी इसको कैसे मतलब सॉल्व किया जाए? मैम इसके लिए हमने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं और बहुत ज़रूरत है और फर्दर स्टेप्स की भी, जैसे मखाना बोर्ड की स्थापना, या फिर जो हमने अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे। उससे हमें पहले तो हमारी जो प्रोसेसिंग है उसके लिए ज़रूरत है कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को लेके आएँ, जो कि 2-3 प्रॉमिस हुई हैं इन द रिसेंट इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की प्रोसेसिंग क्लस्टर्स लगेंगे। साथ में इनका बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन थ्रू डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो बने हैं बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि रोड पेनिट्रेशन फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मलैंड्स टू द इंडस्ट्रियल हाईवेज वो बहुत ज़्यादा हो, और इसके लिए बहुत स्टेप लिया गया। जैसे अमृतसर कोलकाता बेल्ट के साथ जो कॉरिडोर बन रहा है उसके साथ इंटीग्रेशन हमने किया है मैम। अभी आप स्पोर्ट्स में आपने बताया बैडमिंटन का। मैम जी मैम। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं जो बैडमिंटन का, इसको अगर हम डिसीजन मेकिंग में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? मैम आई थिंक डिसीजन मेकिंग में जैसे बैडमिंटन में यू नीड वेरी स्विफ्ट रिस्पॉन्सेज टू द स्मैश। तो इवन व्हेन यू आर फेस्ड विद अ स्मैश ऑफ एडवर्सिटी, यू शुड हैव द एडवर्सिटी क्वेश्चन टू रिबाउंड एंड गिव इट बैक मैम। ओके, इसमें आपने एक टर्म सुनी होगी, लेट, सुना है मैम? लेट टर्म सुनी है, वर्ड सुना है इसमें? लेड? लेट, LET? नो मैम। ओके, ड्यूस?
Dues, ma'am, is the situation when the scores are tied even at the match point, ma'am. ओके, कोई मतलब बिहार का फेमस बैडमिंटन प्लेयर? मैम एक गोपाल कुमार मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट किया है। उसके अलावा ओके, कोई मुझे 2 कप बता सकते हैं आप बैडमिंटन से रिलेटेड? मैम एक तो सैयद अहमद ट्रॉफी होती है हमारे यहाँ जो लखनऊ में इस साल भी होगी। उसके अलावा BWF एशिया कप, BWF ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये सब। ओके, इसमें एक थॉमस कप और एक उबेर कप भी होता है, सुना है आपने? मैम यस मैम। उनमें क्या डिफरेंस होता है? मैम ये भी ध्यान नहीं है मैम मुझे। ओके, चलो, आपने अभी इस जो 7 निश्चय का सुना है, उसका क्या स्टेटस है अभी एट प्रेजेंट बिहार में? मैम 7 निश्चय 3.0 अभी लॉन्च हुआ है और पहले के टारगेट्स काफ़ी हद तक पूरे हुए हैं और अब इम्पेटस हुआ है मैम। जैसे जो समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार की बात है, उसमें बिहार पे फोकस हो रहा है। अलग अलग स्कीम्स लाए जा रहे हैं ताकि जिससे सोशल इंक्लूजन लाया जा सके और महिला एम्पावरमेंट पे काफ़ी फोकस है मैम। तो स्टेटस वाइज अभी बहुत दूर जाना है, बट जो 2 7 निश्चय प्रोग्राम्स थे उसमें काफ़ी प्रगति की है हमने, जो कि काफ़ी एविडेंट है विद द स्किल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन का पैरामीटर्स जो कि ऑलमोस्ट 40% बढ़ा है। साथ में साइंटिफिक इनोवेशन लेड फोकस पे काम हो रहा है, जैसे IIT पटना में सुपर कंप्यूटर्स की स्थापना, या फिर बिपार्ड में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको AI बैट डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम्स देना। इसमें काफ़ी योगदान रहा है मैम 7 निश्चय प्रोग्राम का। ओके, अभी बिहार में एक न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव चल रहा है। मैम न्यूक्लियर प्लांट मैम बता सकते हो कहाँ पे स्थापित? मैम मुझे ध्यान नहीं है, मैं देख लूँगा। ठीक है, चलो।